ہے ابھی کوئی نہیں دیکھے گا، ابھی کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس نور والے کو ابھی نور والے دیکھے گا، کیونکہ ہمارے مصطفیٰ کیا ہے؟ نور والے ہیں، اور جب نور والے ہیں تو نور والے کی زیارت پہلے نور والے کریں گے، نور والے کا دیدار پہلے نور والے کریں گے، اس کے بعد میں پھر زمین والوں کا نمبر آئے گا۔ حضرت عبد المطلب اصرار کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے آپ جو ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا کے اندر تشریف لے آئے اور جب فرشتوں نے انہیں خوب ان کا دیکھ لیا، دیدار کر لیا، ان کے چہرے بشرے کے دیدار کر لیا، پھر حضرت عبد المطلب کو اجازت دی۔ حضرت عبد المطلب دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اے آمنہ تو نے کیا ہی نیک بچہ پیدا کیا ہے، اے آمنہ مبارک ہو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ خدا کا محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں، یہ وہ نبی آئے ہیں، یہ وہ رسول آئے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں، اے میرے محبوب یہ بڑا اسپیشل نبی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب یہ پیدا ہو گئے اور پیدا ہونے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب کچھ زیادہ ہونے لگی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو کلمے کی دعوت دینے لگے، لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں میرا کلمہ پڑھو، میرا کلمہ پڑھو گے، میرا کلمہ پڑھ کے کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ لیکن قربان جائیے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے تو ابو جہل آپ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو میری مٹھی میں جو چیز ہے اسے بتا دیں یہ کیا ہے، اسے بتا دیں میری مٹھی میں ریت ہے، کنکری ہے یا کوئی اور اشیاء ہے یا اور کوئی چیز ہے وہ بتا دیں، کیونکہ ابو جہل جانتا تھا کہ جو رسول ہوگا وہ ڈھکی چھپی جب ہوئے طاقتوں کو جانتا ہوگا، کیونکہ جب وہ آتا ہے تو وہ جادو نہیں دکھاتا بلکہ وہ خدا کا معجزہ دکھاتا ہے۔ جب وہ رسول آتا ہے یا کوئی نبی آتا ہے تو وہ کرامت لے کر کے نہیں بلکہ معجزے لے کر کے آتے ہیں، اور ہر نبی آئے معجزے لے کر کے آئے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی میرے مصطفیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے بھی آپ کو معجزے دیے ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو لوگوں مجھے معجزے دیے نہیں بلکہ میرے رب نے سر سے لے کر کے پاؤں تک مجھے معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ میں جو چاہوں جیسا چاہوں ویسا کر سکتا ہوں، کیونکہ شاعر نے کہا ہے خدا نے مالک ان کو کر دیا ساری خدائی کا، خدا نے مالک ان کو کر دیا ساری خدائی کا، مگر میرے آقا کی سادگی دیکھو کہ بستر تھا چٹائی کا۔ یہ تو میرے آقا کی سادگی تھی، لیکن جو نبی اپنے نواسوں کو عید پہ جوڑے منگا دے، جنت سے جوڑے منگا دے، وہ نبی کیا نہیں کر سکتا۔ لیکن قربان جائیے جب ابو جہل آیا اور آنے کے بعد میں میرے مصطفیٰ سے سوال کرنے لگا، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ ڈھکی چھپی چیز کا علم رکھتا ہے، اسے سب پتا ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے میرے آقا مسکراتے ہیں اور میرے آقا نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا اے ابو جہل میں بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے، لیکن میں نہیں بتاؤں گا، ارے تیری مٹھی میں جو ہے اس چیز سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا، بڑا خوش ہونے لگا، سوچنے لگا یار کبھی کنکر بھی بولتے ہیں کبھی کنکریاں بھی بولتی ہیں، لیکن قربان جائیے اسے یہ پتا نہیں کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں، میں بات اس رسول سے کر رہا ہوں جس کے آگے ہر کوئی بے بس ہے اور ہر کوئی بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے کسی کے سامنے کوئی بولا، کسی کے سامنے کوئی بولا، لیکن میرے مصطفیٰ نے جب کہا کہ تیرے ہاتھ میں ابو جہل جو چیز ہے تو اسی سے پوچھ دے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل سوچنے لگا یار کنکری بھی کبھی بولتی ہے، مٹی بھی کبھی بولتی ہے، پتھر بھی کبھی بولتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حکم کون دے رہا ہے۔ ابو جہل نے سوچا یار یہ بات تو اچھی ہے، ابو جہل اب دیکھو کتنا بڑا بے وقوف ہے، ان کنکریوں سے پوچھ رہا ہے کہ کنکریوں بتاؤ یہ کون ہے۔ قربان جائیے حدیث میں آتا ہے جیسے ہی ابو جہل نے اس
कंकरियों को अपने कानों के पास लगाया। कंकरियां कह रही थी ये वो है जिनका कलमा रब ने खुद बनाया है और अपना नाम अपने इस हबीब के साथ जोड़ा है, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये वो है जिसे रब ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया। ये वो है। जब अबू जहल पूछने लगा तो अबू जहल पूछ रहा कि बताओ ये कौन है, तो कंकरिया बोली बेवकूफ, अगर तू इतना ही जाहिल होता तो इन्हें पहचान नहीं लेता, क्योंकि उसे मालूम था कि जादूगर जादू के जरिए भी काम चलाते हैं, जादूगर जादू के जरिए भी कभी कभी कुछ जो है शय रखते हैं, कोई अपने आगे करामतें रखते हैं, कोई अपने पास में जो है वो अजीब अजीब हरकत और सकनात रखते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए अबू जहल को ये पता था। लेकिन जब अबू जहल ने ये पूछा और जब मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ा तो जैसे ही कंकरियों ने कलमा पढ़ा अबू जहल गुस्से हो गया, कहने लगा माज़अल्लाह इस मोहम्मद का जलवा तो कंकरियों पर भी चल गया। हंसने लगा, कहने लगा अरे ये तो बहुत बड़े जादूगर है, ये तो बहुत बड़े चाल फरेबी है। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए अबू जहल तू जाहिलों का बाप है। जभी से मेरे आका ने कहा दुनिया ने उसे जाहिलों का बाप कहना शुरू कर दिया। लेकिन कुर्बान जाइए अबू जहल जो उसका एक दोस्त था यमन के अंदर रहता था, उसने अपने दोस्त जिसका नाम यमन हबीब यमनी था उसने खत लिखा और उसका दोस्त जो था ना बड़ा हकीम था। क्या था? हकीम था, दानिशमंद था, सी शऊर आदमी था। उसने यमन अपने दोस्त के पास में खत लिखा। अबू जहल उसके साथ में कारोबार भी करता था, उसके साथ में लेन देन भी करता था, उसके साथ में खरीदो फरोख्त भी करता था और उसका बड़ा पुराना जिगरी दोस्त था। उसने हबीब यमनी के पास में खत लिखा और कहने लगा यार मक्के के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया है, रिश्ते में तो मेरा महल्ले के हिसाब से मेरा भतीजा लगता है, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत बड़ा जादूगर है। ए हबीब यमनी तुझे अल्लाह ने जो है हिकमत दी है, तू नब्ज पकड़ के बता देता है, तू आंखें देख करके बता देता है, तू चेहरा देख के बता देता है कि इसके साथ में क्या हुआ है। ए हबीब यमनी मैं तुझे खत लिखता हूँ, तू मेरा खत देखते ही फौरन मक्के में आ जाना। हबीब यमनी ने जैसे ही खत पढ़ा और पढ़ने के बाद में मक्के को रवाना हो गए और मक्के को रवाना होने के बाद में जब वो हबीब यमनी मक्के आना शुरू किए तो अबू जहल जो था अपने दोनों हाथों में रुई लेकर के और वहां मक्के के बाहर खड़ा था, जहां मक्के में जो है आने जाने के रास्ते की एंट्री हुआ करती थी, वहां खड़ा हो गया और आकर के हबीब यमनी का इंतजार करने लगा। देखा उसने कि जब हबीब यमनी आ गए, हबीब यमनी से उसने बातचीत की, उसका खैर मकदम किया, उसका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में कहा ए हबीब यमनी तुम आ तो गए हो, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा जादूगर है, वो बड़ा जादूगर है, वो सब कुछ कह देता है। अरे एक दिन तो उसने मेरे हाथों में कंकरियां थी, उन कंकरियों से अपना कलमा पढ़वा लिया, वो बहुत बड़ा जादूगर है। हबीब यमनी कहने लगे ऐसा करना उनसे मेरा सामना करा देना, मुझे उनका हाथ दिखा देना, मैं हाथ पकड़ करके बता दूंगा इनके ऊपर क्या है। लेकिन कुर्बान जाइए हबीब यमनी से उसने अबू जहल ने कहा ए अबू जहल जो है तू ये जो रुई लाया है ये किस लिए लाया है? अबू जहल ने कहा यार वो नबी ऐसा है जो अपनी बात कह देता है वो उसी का हो जाता है, वो उसी के गीत गाने लगता है, जो उसका चेहरा देख लेता है, उसके चेहरे बुशरे की ज़ियारत कर लेता है, वो उसी का दीवाना बन जाता है, उसी का मस्ताना बन जाता है। ए हबीब यमनी मैं ये चाहता हूँ कि जब तेरा आमना सामना मोहम्मद अरबी से हो तो तू अपने कानों में रुई ठूस ले ताकि उनकी आवाज तेरे कानों में ना जाए। लेकिन कुर्बान जाइए शायर ने कहा है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब अबू जहल ने उससे कहा कि कानों में रुई लगा ले और उसने कहा कि चलो पहले तो मेरे घर चलो, उसने नाश्ता कराया, खाना खिलाया, अब उसे खिला पिला के तैयार कर लिया। अब कहने लगा यार क्या करना चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए,
क्या करना चाहिए, मशवरा करने लगा। उससे हबीब यमनी से पूछने लगा कि बताओ तुम कैसे कैसे जो है उनकी जांच कर सकते हो। उसने हबीब यमनी ने कहा कि मैं उनका हाथ पकड़ करके मैं बता दूंगा कि इन पर क्या चक्कर है, मैं बता दूंगा चेहरा देख करके, मैं बता दूंगा आंखें देख करके, मैं बता दूंगा उनका जो है हुलिया देख करके, लेकिन कुर्बान जाइए। अब वो अबू जहल कहने लगा, अरे यार अगर ये उन मोहम्मद अरबी के सामने चले गए तो जिसने आज तक उस नबी का चेहरा देखा है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ए हबीब यमनी, अगर मैं तुझे ले गया कहीं ऐसा ना हो तू भी उनका चेहरा देख के कलमा पढ़ ले। हबीब यमनी कहने लगे, यार फिर तू ही बता, तू ही कोई ऐसा असबाब बता। हबीब यमनी से जब मशवरा होने लगा तो अबू जहल कहने लगा, अच्छा ऐसा है, अब रात हो गई है, आराम कर लो, कल को देखा जाएगा जो भी होगा। अब अबू जहल रात भर सोया नहीं, रात भर सोचता रहा क्या प्लानिंग की जाए, किस बहाने से, किस हीले से उन्हें बुलाया जाए। लेकिन कुर्बान जाइए, हबीब यमनी से जब उसने सुबह हुई और कहने लगा, अच्छा मेरे दिल में ये ख्याल आया है कि चले मोहम्मद अरबी को मैं अपने घर ही बुला लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? घर बुला लेता हूँ। मोहम्मद अरबी यानी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैं खुद, अबू जहल कहने लगा, मैं अपने घर पर ही बुला लेता हूँ और तू उनका चेहरा देख के फिर बताना क्या माजरा है। लेकिन कुर्बान जाइए, अभी मैंने शेर पढ़ा था ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये अबू जहल नीचे प्लानिंग कर रहा था और अल्लाह ताला अर्श आजम पर प्लानिंग कर रहा था। और अबू जहल ने कहा कि यार उनकी शान ये है कि जब वो आते हैं तो लोग उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब मोहम्मद अरबी हमारे घर पर आए तो कोई ताज़ीम के लिए खड़ा ना हो, बैठे रहना ताकि उनकी किसी भी तरीके से इज्जत ना हो सके, खैर मकदम ना हो सके, स्वागत ना हो सके, उनकी ताज़ीम के लिए खड़े मत हो जाना। अबू जहल ने मक्के के बड़े बड़े सरदारों को, उतबा को, शैबा को, बड़े बड़े गुरु घंटालों को बुलाया और बुला करके कह दिया कि जिस वक्त मोहम्मद अरबी मेरे घर पर आए कोई भी खड़ा मत हो। क्या कहा? कोई भी खड़ा ना हो, खड़ा ना होना। इधर अबू जहल अपनी प्लानिंग कर रहा था, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से मशवरा कर रहा था। और जब मेरे आका को पैगाम भिजवाया ना तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे वो कुछ गुस्से भी होने लगे, कुछ परेशान भी होने लगे कि हुजूर आप उनके घर ना जाएं, वो बड़े दुश्मन हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अजियत दें, कहीं ऐसा ना हो कि तकलीफ दें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको सौबतें देने लगे, आपके साथ मार पिटाई करने लगे, कहीं ऐसा ना हो क्योंकि वो बहुत बड़ा घामड़ है, वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, वो बहुत बड़ा मक्कार है। आका कहीं ऐसा ना हो। इतना कहना था, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और भेज करके कहा, ए महबूब आपके रब ने आपको सलाम कहा है और आपके रब ने कहा है कि तुम अबू जहल के घर जरूर जाना। सुभान अल्लाह, तुम अबू जहल के घर जरूर जाना, जरूर जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को भेजा। क्या कहा? पहले जिब्रील को भेजा और जिब्रील की ड्यूटी लगाई कि तू अबू जहल के पीछे खड़ा हो जाना। क्या करना? अबू जहल के पीछे खड़ा हो। अबू जहल के, हजरत जिब्रील से कहा कि अबू जहल बैठा हो और मेरे नबी जैसे ही आए, मेरा हबीब जैसे ही आए, जैसे ही एंट्री करे वैसे ही अबू जहल की ड्यूटी लगाई कि अबू जहल का कान मरोड़ देना और मेरे आका की आमद की वजह से अबू जहल का कान मरोड़ करके जिब्रील से कहा खड़ा कर देना। समझ में आया या नहीं? जिब्रील को खड़ा कर दिया, कह दिया कि जैसे ही मेरा हबीब आए अबू जहल का कान पकड़ना और खड़ा कर देना। और जितने भी दूसरे कुफ्फार हैं उनके पीछे भी फरिश्ते खड़े कर दिए। अब अल्लाह की प्लानिंग तो बड़ी स्पेशल है, अल्लाह की हिकमत तो बड़ी स्पेशल है, क्योंकि दुनिया वाले कोई प्लानिंग करते हैं लेकिन जिसकी मौला हिफाजत करे उसे कौन बिगाड़ सकता है। शायर ने कहा है कि जिसको रखे अल्लाह उसे कौन चखे।
है या नहीं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदेश दिया तो अबू जहल के पीछे तो जिब्रील को खड़ा कर दिया और हर काफिर के पीछे एक एक फरिश्ता खड़ा कर दिया और कहा कि जैसे ही मेरा महबूब आए इन सारे काफिरों को खड़ा कर देना और मेरे महबूब की ताजीम के लिए खड़े हो जाएं। ऐसे ही हुआ। हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहां पर अबू जहल के घर पर आए तो जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आते हुए अबू जहल ने देखा, अबू जहल अपने दोस्तों के कोनी मारने लगा, एक भी खड़ा मत होना, एक भी खड़ा मत होना। देखा हुजूर आ रहे हैं, इधर एक दूसरे के कोनी मार रहे हैं। और जैसे ही मेरे आका ने अबू जहल के घर में एंट्री ली, फौरन जिब्रील ने कान को मरोड़ा और पहले अबू जहल को खड़ा कर दिया। जहां तक कि अबू जहल मना कर रहा था, लेकिन अबू जहल को जब खड़ा करा, अबू जहल खड़ा हो गया तो दूसरे भी फरिश्तों ने कान को मरोड़ा और खड़ा कर दिया। सब खड़े हो गए, मेरे आका घर में आ गए और आकर के बैठ गए। मेरे आका ने जिब्रील से कहा, जिब्रील अब तो इनके कानों को छोड़ दे, बैठ जाए। अब तो इनके कानों को छोड़ दे, मेरे रब ने मेरी ताजीम करा ली है। अब हबीब यमनी से अबू जहल अब एक एक के कोनी मारे कि तू क्यों खड़ा हुआ, तू क्यों खड़ा हुआ, तू कैसे खड़ा हो गया। अब सब कहने लगे जब आका तुम ही खड़े हो गए तो हम कौन खड़े हो गए। अब अबू जहल कहने लगा कि यार मुझे खुद पता नहीं खड़ा मैं कैसे हो गया, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा पीछे से कान मरोड़ा और मुझे कान पकड़ के खड़ा कर दिया। लेकिन कुर्बान चाहिए, मेरे आका मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके अर्ज करते हैं, ए जिब्रील अब तो तू इस मरदूद का कान छोड़ दे ताकि ये बैठ जाए। अब अबू जहल ने कहा, हबीब यमनी से बातचीत करने लगा, हबीब यमनी यही है वही जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, जो अपने आप को रसूल कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने किताब भी दी है, मुझे अल्लाह ने पैगंबर भी बनाया है, मुझे अल्लाह ने रसूल भी बनाया है, मुझे अल्लाह ने अपना हबीब भी बनाया है और मुझे अल्लाह ने बड़े मौजज़ों से नवाजा है। लेकिन हबीब यमनी कहने लगे और क्या क्या कहते हैं और क्या क्या इनसे देखा है। अबू जहल कहने लगा, मैं एक मर्तबा इनकी बारगाह में गया था, हाथ में कंकरियां लेकर के गया था, लेकिन मैंने ये देखा है कि इन्होंने कंकरियों से न कुछ कहा न कुछ और कंकरी इनका कलमा पढ़ती हुई नजर आती थी। अबू जहल जब इतना कहने लगा तो आपने हबीब यमनी ने मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा, मेरे मुस्तफा से कहने लगा, ए आका मोहम्मद मैं आपको जानता जरूर हूँ, क्योंकि जो नबी होता है वो अल्लाह का सच्चा रसूल होता है, जो नबी आता है वो मौजिज़े लेकर के आता है, जो पैगंबर बन के आता है वो मौजिज़े लेकर के आता है, जो रसूल बन के आता है वो जो है मौजिज़े लेकर के आता है। आपसे जब इतना कहा तो हबीब यमनी कहने लगे, आका मैं आपको जानता जरूर हूँ, लेकिन मेरे आपसे दो सवाल है, मेरे आपसे दो क्वेश्चन है, मेरे आपसे दो सवाल है, जिसमें से एक सवाल आपसे मैं करूंगा और जवाब आपको देना होगा और दूसरा सवाल भी आप करेंगे और जवाब भी आप ही देंगे। क्या कहा? दो सवाल है मेरे, एक सवाल तो मैं करूंगा, जवाब आपको देना होगा और दूसरा सवाल आप ही करेंगे और जवाब भी आप ही देंगे। जब हबीब यमनी ने से कहा अबू जहल ने कि देख देख बता, तो अबू जहल टेंशन में पड़ गया। अबू जहल ने कहा कि जो नबी होता है उसका जादू आसमानों पर नहीं, बस थोड़ा सा जी बस पता नहीं। तो हबीब यमनी कहने लगे कि जो अल्लाह का नबी होता है, जो अल्लाह का रसूल होता है, वो जो है मौजिज़े लेकर के आता है। ए अल्लाह के नबी, मैं आपको नबी तस्लीम कर लूंगा, मैं ये चाहता हूँ कि आसमान पर अभी सूरज निकला हुआ है, अभी दिन है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे दिन को रात
में तब्दील करे और चांद निकाले और चांद के 2 टुकड़े कर दे और 2 टुकड़े कर देंगे तो मैं आपको अल्लाह का नबी तस्लीम कर लूंगा। इतना कहना था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके कहते हैं, ए हबीब यमनी, तुझे पता है दोपहर का टाइम है, अभी सूरज अपने पूरे शबाब पर है, अपनी पूरी शुआएं अपनी पूरी किरणों के साथ में है, लेकिन अभी दोपहर है। तुझे पता है कि चांद निकलता नहीं है दिन में, चांद रात में निकलता है। मेरे आका ने कहा कि मैं तुझे चांद रात बना के भी दिखाऊंगा। मेरे मुस्तफा ने इशारा किया, इधर इशारा किया, सूरज चला गया, रात होने लगी। रात जैसे ही हुई जो ये चांद निकलने लगा, मेरे आका ने कहा, ए अबू जहल के साथी, ए अबू जहल के दोस्त, क्या ये तू चाहता है कि मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूं? उसने कहा, हाँ, मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे आका ने ना कुछ किया, सिर्फ अपनी शहादत की उंगली उठाई और शहादत की उंगली उठा करके चांद की तरफ इशारा किया। इधर मेरे आका का इशारा करना था, उधर दिन को जाना था, रात को आना था, सूरज गुरूब होना था और चांद निकलना था। रात हो गई, जैसे ही सूरज डूब गया, चांद निकला और जैसे ही रात हो गई। जब चांद अपने पूरे शबाब पे हुआ, मेरे आका ने मुस्कुराते हुए चांद की तरफ इशारा किया और जैसे ही इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए, आधा इधर गिरा और आधा इधर गिरा। लेकिन जब चांद के 2 टुकड़े करे तो हबीब यमनी कहने लगे, आका अब इसे जोड़ भी दीजिए। मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, पहला इशारा किया तोड़ने के लिए और दूसरा इशारा किया चांद को जोड़ने के लिए। तो मेरे आका हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि मेरे आका की हुकूमत तो आसमानों पर भी है, क्योंकि शायर ने कहा है, खुदा ने मालिक उनको कर दिया सारी खुदाई का, मगर मेरे आका की सादगी देखो कि बिस्तर था चटाई का। अब एक सवाल हबीब यमनी ने कर लिया, अब उसने क्या कहा था, दूसरा सवाल आप ही करेंगे और दूसरा सवाल का जवाब भी आप ही देंगे। हबीब यमनी ने जब इतना कहा तो कहने लगे, मेरे आका मुस्कुराते हैं और मेरे आका ने मुस्कुरा करके कहा, ए हबीब यमनी, तू ये चाहता है कि यमन के अंदर एक तेरी बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन आंखों से देख नहीं सकती है, कानों से सुन नहीं सकती है, नाक से सूंघ नहीं सकती है, हाथों से कुछ काम नहीं कर सकती है, पैरों से चल नहीं सकती है, यहाँ तक के पूरे जिस्म से बिल्कुल लाचार है। तू ये चाहता है कि तेरी बेटी सही हो जाए, जा, हमने तुझे भी कलमा पढ़ा दिया और रात को जब चांद के 2 टुकड़े किए थे, उस वक्त हमने तेरी बेटी को भी तेरे घर में जाके कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, हबीब यमनी मुस्तफा के कदमों पे गिर गया और कहने लगा, ए अबू जहल, अरे जिस नबी होता है, जो नबी होता है, उसकी हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं, उसकी हुकूमत आसमानों पर भी चलती है। हबीब यमनी ने फौरन मेरे नबी के हाथों को लिया और कलमा पढ़ा, कहा, आका जिस अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, आका मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर दीजिए। अब हबीब यमनी कलमा पढ़ के बस 5 मिनट रुक जाइए, यमन पहुंचे। कहाँ पहुंचे? यमन पहुंचे और जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचने वाले थे, आपकी बेटी जो बिल्कुल बेकार थी, आंखों से भी, हाथों से भी, नाक से भी, पैरों से भी, हर चीज से बिल्कुल बेकार थी, लेकिन बाप की जो है उसने खुशबू 1 किलोमीटर पहले सूंघ ली और अपनी बाप के लिए, अपने वालिद के लिए दरवाजा खोलने के लिए वही बेटी दरवाजे पर आती है। और जब दरवाजे पर आती है तो अब जो है हबीब यमनी को ना तो कुंडी बजानी पड़ी, ना खटका बजाना पड़ा, ना दरवाजा खटखटाना पड़ा, वो बेटी
बेटी पहले ही आ गई और आकर के दरवाजा खोल दिया। हजरत हबीब यमनी कहते हैं, ए बेटी, अरे तू तो बेकार थी, अरे बेकार थी, तू तो अपाहिज थी, तू तो लंगड़ी थी, तू तो लूली थी, ये तेरे साथ क्या हुआ? आपने कहा कि अब्बा जान, जो तुम्हारे साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है, कि आपके साथ क्या हुआ? हबीब यमनी कहने लगे, बेटा मैं उस मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के आया हूँ। बेटी कहती है, अब्बा मैंने देखा था कि दिन में रात होने लगी, मैंने सोचा रात हो गई है, लेकिन सूरज को मैंने देखा कि सूरज गुरूब हो गया, सूरज चला गया, सूरज लौट गया, रात हो गई, चांद निकला, लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि चांद के दो टुकड़े हो गए, आधा इधर गिरा, आधा इधर गिरा। आप कहते हैं, बेटा जिसका तूने चांद का देखा है, मैं उसी नबी के हाथ पे कलमा पढ़ के आ रहा हूँ। इतना कहना था, हबीब यमनी रोने लगे। हबीब यमनी कहने लगे, बेटा मैंने उस नबी का सामने दीदार किया है। बेटी कहती है, अब्बा तुमने तो मक्के जाके उनका दीदार किया है, और वो नबी मुझे उस रात में कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर गए और मुझे सही साबित। अब बेटी ने क्या कहा? अब जो हबीब यमनी बेटी से पूछने लगे, बेटी तूने मुझे पहचाना कैसे? तो हबीब यमनी की बेटी कहने लगी, अब्बा जो नबी का हो जाता है उसकी खुशबू 1 किलोमीटर दूर से ही आती है। कहाँ से आती है? 1 किलोमीटर दूर से ही खुशबू आती है। मैंने पहचान लिया कि मेरे वालिद मोहतरम हुजूर का कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए हैं। शायर ने कहा है, बेटी ने कहा, अब्बा जिसका कलमा तुमने मक्के में पढ़ा था वो नबी उस रात मेरे घर आया और आकर के उसने मेरे लिए रब से शिफा की दुआ की और अल्लाह ने मुझे शिफा याब कर दिया। मुझे दिखने भी लगा, मुझे जो है हाथ भी सलामत हो गए, पैर भी सलामत हो गए, सब कुछ सलामत हो गए, और मैंने ईमान की खुशबू से पहचान लिया कि मेरे वालिद आ रहे हैं। इसीलिए आला हजरत ने कहा था, उनकी महक उनसे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, पूछे बसा दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो है नबी का महफिल मिलाद मनाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और जो कुछ बयान हुआ है, अल्लाह इसके सदक़े में, जिसके लिए ये प्रोग्राम रचाया गया है, बसाया गया है, अल्लाह नबी के सदक़े में जो है नाजिम को अल्लाह खैर व बरकतें अता फरमाए, और इस घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अपने महबूब के तवस्सुल वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों जानी जो है ज़ौजैन के अंदर, दोनों मियाँ बीवियों के अंदर आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा फरमाए। हमेशा जिंदगी मेरी मिदहत सरकार में गुजरे, हमेशा जिंदगी मेरी मिदहत सरकार में गुजरे। जो कुछ बची है जिंदगी वो दुरूद और सलाम में गुजरे, जो कुछ बची है जिंदगी वो दुरूद और सलाम में गुजरे। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुझको मेरे आका ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुझको मेरे आका ने संभाल रखा है, और डाल कर मेरी खताओं पर पर्दा मुझे अच्छे से अच्छों में डाल रखा है, मुझे अच्छे से अच्छों में डाल रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ बयान किया है मौला, इसमें जो भी गलती हो गई है मौला उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरिश्तों की